Good evening and welcome to Artha Studio. Artha Studio, a vision of eminent artist Sunil Mal Chatterjee. So today we have come to the last day of this holy workshop, holy session. From past 3 days consecutively we are having the session on holy. That is on first day we learnt how to do tie and dye, the chutney which I am wearing now. Happy Holi chutney. Tie and dye, how we can do the tie and dye at home. This we have also learned this thing like this. You can use it anywhere. You can keep it here. Today, like I will be making the laddus, mithai, the chocolate laddu and the milk laddu, and we can always keep it here. So this was first day of workshop. Then second day, yesterday we learnt about how we can make the holy colors at home with the colors with the materials which are already present in our kitchen, like maida, besan or makki ka atta, and then food colors, then turmeric, then roli, with all these things, then chukundar, palak, with all natural colors, with all natural things, with vegetables, with cereals, how we can make the holy colors, organic colors, and at home and make the holy more organic, more green holy, environmental friendly holy, skin friendly holy, eco friendly holy. वाई इको फ्रेंडली होली? बिकॉज आप जो भी कलर आप लगा रहे हैं वो कलर अगर ज़मीन पर गिर रहा है सो वो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब नहीं कर रहा है. फर्टाइल सॉइल जो फर्टाइल है उसकी फर्टिलिटी नहीं जा रही है बिकॉज वी आर यूजिंग वेरी वेरी नेचुरल कलर्स. अगर आप चुकंदर से बनाया हुआ मैदा है या पाउडर है वो अगर आपका ज़मीन पे गिर भी जाता है तो वो ज़मीन की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब नहीं कर रहा है. जो पॉल्यूशन है वो हमारा नहीं बढ़ा रहा है, पॉल्यूट नहीं कर रहा है. सो दैट इज़ वाई इट्स एन इको फ्रेंडली होली. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द थर्ड डे. और तीसरे दिन में हम सीखेंगे टू मेक लड्डूस, और वो भी विदाउट फायर. विदाउट फायर आप किस तरह से लड्डू बना सकते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए. नॉट ओनली इन होली, होली के अलावा भी आप जो है इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं. कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. हम बड़े आसानी से घर पर बैठकर ही सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही हम इसे तैयार कर सकते हैं और इसका एंजॉय ले सकते हैं. और ये भी क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है हाइजेनिक है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है. आई कैन से कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है इसमें जो कि न्यूट्रिशियस नहीं है. सो आज थर्ड डे एंड कंक्लूडिंग डे में वी विल लर्न दिस थिंग. सो इस तरह से आर्था स्टूडियो जो है, टू टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई मस्ट टेल यू a little about Artha Studio. Artha Studio gives platform to the budding artists. Artha Studio gives platform to the children. Artha Studio organizes competitions time to time, and the children, they participate in these competitions and then they get the certificates and their the poems and the song, then poetry, then the paintings, they all get published on the page of Artha Studio and in the YouTube channel of Artha Studio, and more people are able to see them. So Artha Studio is basically an overall grooming center for the kids, and even for the budding artists. The artists can come, they can explore here. The work of the eminent artist Sunil Mal Chatterjee. He was a versatile artist. He was a very eminent artist of throughout this north zone. So the artists, they can come here, they can explore his work, they can explore the if they want to, the what art in architecture is, what is the mural art, what is doodling, what is sketching, how even we can mount all these things if we are not getting anything, if we are not able to go to the market, if we are not economically very sound, then how can we make all these things at home? It's
video. So now, not taking much of your time, let's start today's session, that is मिठाई. होली की मिठाई बिना आग के. तो मोस्टली हम लोग जो मिठाई बनाते हैं वी यूज फायर. फायर में घी यूज होता है, सब कुछ यूज होता है. यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं द पार्ले जी बिस्किट. अब ये पार्ले जी बिस्किट जो है, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है. जो यहाँ पर ये मेरा ग्राइंडेड फॉर्म मेरा ऑलरेडी है, बिकॉज ये जो है टाइम हमारे पास कम है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मिक्सी लेकर मैं नहीं बैठ सकती हूँ. सो वी विल नॉट एबल टू ग्राइंड इट प्रॉपरली, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू. लेकिन वैसे भी ये बड़ी आसानी से आप इसके पैकेट को काट कर इसको आप अगर मिक्सी के अंदर डालेंगे बिस्किट्स को, चाहे आप बीच में से तोड़ लीजिए, चाहे आप पूरी की पूरी बिस्किट को डालिए मिक्सी के जार में, और उसके बाद उसको 1 या 2 बार घुमाइए, बहुत ज्यादा भी नहीं घुमाना, तो आप यू विल गेट द पाउडर फॉर्म ऑफ दिस बिस्किट. ठीक है. और उसके साथ आपको चाहिए देन कंटेनर ऑब्वियसली आपको एक जगह चाहिए जहां पर आपको बनाना है इस लड्डू को. देन टू मेक द चॉकलेट लड्डूज यू नीड चॉकलेट सिरप. चॉकलेट सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास अगर टाइम है तो आप कैडबरीज भी ले सकते हैं. कैडबरीज को लेकर उसको तोड़कर उसको आप मेल्ट कर लीजिए. मेल्ट करने के बाद उसे आप उस बिस्किट के साथ डालिए और उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, एक साथ उसको मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद यू कैन मेक द लड्डूज. या फिर आप अगर आपने मिल्क लड्डूज बनाने हैं तो दिस इज द कंडेंस मिल्क. इट इज़ रेडिली अवेलेबल, और ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ये बहुत अच्छी होती है. बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा होता है. ऑल ऑफ दीज हैज गॉट अ वेरी गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्सो. ये बच्चों के लिए, इसीलिए हमने ये लड्डू हेल्दी लड्डूज, तो ये हेल्दी लड्डू हम आपके लिए लेके आए हैं. एक दिन हम आपके लिए बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर भी हम आपके साथ एक सेशन रखेंगे. विल हैव अ सेशन एंड विल मेक यू मीट विद द डाइटिशियंस ऑल्सो, ताकि आप अपने क्वेरीज पूछ सकें. आप अपने बच्चों के बारे में, आपके बच्चों को क्या क्या चाहिए, उनके ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो आपको हम वो भी सेशन एक दिन हम आपको देंगे. तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इन लड्डुओं से. तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ पाउडर जो है हम इसके अंदर डाल लेते हैं. ये हमने थोड़ा सा पाउडर जो है इसके अंदर हमने डाल लिया है. ये बिस्किट का पाउडर है, ये वाला बिस्किट मैंने आपको पहले ही बताया है, पार्ले जी बिस्किट है. बिस्किट का पाउडर हमने यहाँ पर डाल लिया है और मैंने इसको बंद कर दिया. अब मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर डालूंगी ये मिल्क मेड. अब मैंने इसको यहाँ से मैंने स्पून ले लिया है. अब मैं दूसरा स्पून लूंगी, दूसरे स्पून से मैं मिल्क मेड को लेकर इसको मैं इसके अंदर डालूंगी. और अब मैं इसको सबसे पहले इसको मैं गोल गोल घुमाकर देख लो. आई विल बी यूजिंग माई हैंड्स, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने हाथ धो रखे हैं. सो आई विल बी यूजिंग माई हैंड्स टू मिक्स इट प्रॉपरली. अब इसको हम पूरी तरह से, बिकॉज हाथ से अगर जब तक इसको आप मिक्स नहीं करोगे तब तक ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, तब तक आप इसको गोलाकार लड्डू के आकार में नहीं बना सकोगे, तब तक आप इसको गोल नहीं कर सकोगे, जब तक आप इसको हाथ से नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे प्रॉपरली. तो इसके लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास बटर या घी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वो आपके हाथों से बिल्कुल निकल आएगा, ताकि ये आपके जो लड्डू जो है वो बड़े अच्छे बने, बहुत प्रॉपर बने. उसको आपने इस तरह से आप इसको मैश कर लीजिए. आप इसको थोड़ा सा इससे भी, इसकी सहायता से भी आप थोड़ा सा इसमें डाल लीजिए, और इसको अच्छी तरह से इतना आपने इसको वो करना है, इतना इसमें डालना है कि वे इसमें ये पूरी तरह से लड्डू का आकार ले सके, लड्डू के जैसा ये बन सके. आपने बिल्कुल ऐसा करना है. ठीक है जी. आप अपने साथ ऑयल लेके बैठिए.
या अपने साथ आप थोड़ा सा पानी लीजिए। आप पानी से हाथ से थोड़ा सा उसको अगर वो करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, तो सामने मेरे पानी रखा है, मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ और इस पानी को यहाँ पे लगाती हूँ, तो ये अपने आप ही काफ़ी अच्छा बिल्कुल आटे की तरह ये गूंथा जाएगा, बिल्कुल एक आटे की तरह ये बन जाएगा। और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से हाथ से गोल कर लूंगी। ये इस तरह से, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ। अब मैंने इसके छोटे छोटे 3 हिस्से कर लिए हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको लगे कि कोई भी हिस्सा छोटा या बड़ा है, आप उसको हाथ में थोड़ा तेल ऑयल की स्प्रेडिंग कर लीजिए और इसे आप अच्छी तरह से गोल कर लीजिए। आप बहुत अच्छी तरह से इस लड्डू को गोल कर लीजिए। इसी तरह से आप, एंड बिलीव मी, ये बच्चों को जितने अच्छे स्वाद लगेंगे और आप बड़े आराम से टेंशन फ्री होकर आप ये बच्चों को दे भी सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है बच्चों के लिए। बच्चे इसको आराम से खा सकते हैं। होली में अगर उनके साथ उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं, कोई आ जाता है, तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से आप उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन भी होगा इसका। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। इस तरह से हमने इसे दे लिया है। इस तरह से हम इसको आकार दे रहे हैं। आप अपने हाथों को थोड़ा सा पानी से भी वो कर सकते हैं, ताकि आप इसका बहुत अच्छा आकार दे सकते हैं। आप इसको अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, वरना बाहर इसको रखिए। आप 2-3 दिन तक इसे रख सकते हैं, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है उससे भी कुछ खराब नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि आप इससे भी इवन जो पाउडर का ये जो हमने मिक्सी में जो इसका पाउडर बना लिया है, बिस्किट का पाउडर, ये भी बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा और लेते हैं, लेकर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने लिया। यहाँ पर हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया। यहाँ हमने इसको मिलाना शुरू किया अच्छी तरह से। इसको हम अच्छी तरह से मिला रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इसको दूसरी बार इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि अगर आपके हाथ में थोड़ा सा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ में आपके चिपक रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा और अपने हाथ में ले लीजिए। अपने हाथ में ले लीजिए और हाथ में लेकर आप इसको अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों की सहायता से, ध्यान रखिएगा आपके हाथ बहुत अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज्ड होने चाहिए, तभी आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, वरना ये अनहाइजीनिक हो सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने पानी हाथों में ले लिया, पानी से इसको वो कर दिया, और अब आपने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको गूंथना है। ये देखिए जैसे चिपक रहे हैं, इसका मतलब हमारा गूंथने का तरीका जो है अभी भी ठीक नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ा सा और पानी डालने की आवश्यकता है। तो हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पर हम पानी डाल लेते हैं। पानी डालकर जब हम इसको ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे हाथों के बीच में आ रहा है।
ये अब बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। ये हाथों के बीच में पूरी तरह से ये आ रहा है, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये इस तरह से हो गया है। अब दोबारा से हमने इसको तेल अपने हाथों में लगाया पूरी तरीके से, और इसे हमने फिर से इसको बाइंड कर लिया है। बाइंड करके अब हम इसके 2 हिस्से कर रहे हैं, और 2 हिस्से करने के बाद हमने इसको गोलाकार आकार दे दिया है। हमने इसको गोलाकार दे दिया है क्योंकि ये लड्डू है। आप इसको सांचे में ढालकर बर्फी का भी रूप दे सकते हैं, पेड़े का रूप भी दे सकते हैं। इसको सांचे बाजार में मिलते हैं, कई तरह के मोल्ड्स मिलते हैं। आप इनको देकर आप इन्हें इस तरह का आकार भी इनको दे सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए। अब इसके बाद इनको किस तरह से सजाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हमारे मिल्क लड्डू जो है ये बनकर तैयार है। इनको मैं यहाँ पे साइड में रख लेती हूँ। इन मिल्क लड्डुओं को मैं यहाँ साइड में हटाकर रख रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से हम चॉकलेट लड्डू बनाते हैं। चॉकलेट लड्डू बनाने के लिए भी विधि यही है। इसी बिस्किट को आपने यूज करना है। इसकी जगह आप अगर ओरियो बिस्किट लेना चाहें तो आप ओरियो बिस्किट भी ले सकते हैं। मैंने इसी बिस्किट का यूज किया है, ब्रिटानिया का, क्योंकि ये बिस्किट जो है ये बहुत हेल्दी बिस्किट है, ये बहुत न्यूट्रिशियस बिस्किट है बच्चों के लिए, और मुझे बच्चों के लिए हेल्दी ही बनाना है। मैं कुछ हेल्दी ही बच्चों को देना चाहती हूँ। वैसे तो ये बच्चे क्या है, वैसे अगर हम देना चाहें तो वो बिस्किट खाना नहीं चाहते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हम इनको बनाकर देंगे, इस तरह से बनाकर देंगे, तो वो बहुत अच्छी तरह से वो खाएंगे। इसको डेकोरेट करके जब हम रखेंगे तो ये और भी सुंदर नजर आएंगे। वो भी आपको मैं बताऊंगी किस तरह से हमने इसको डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले मैं अब आपको इसका बता रही हूँ कि इसमें भी आपने अंदाजे से आपने ये वाला पाउडर ले लेना है, ब्रिटानिया बिस्किट का पाउडर ले लेना है। जो ये ब्रिटानिया पार्ले जी बिस्किट्स हैं, यही वाले बिस्किट मैंने यूज किए हैं। और अब मैंने कंडेंस मिल्क की जगह अब मैंने हर्शीज का चॉकलेट सिरप ले लिया है। मैंने हर्शीज का चॉकलेट सिरप इसलिए लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेन है यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको कैडबरीज के साथ नहीं दिखा रही हूँ। नहीं तो आप कैडबरीज चॉकलेट लेकर उसको भी आप गर्म करके उसे कर सकते हैं। ये मैंने इसको इस तरह से गूंथना शुरू कर दिया है, मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब मैंने देखना है वो कैसे मिक्स हो रहा है, किस तरह से ये मिक्स हो रहा है। मुझे ये मिक्सिंग देखनी है। इस मिक्सिंग को देखने के लिए मुझे इसकी कंसंट्रेशन को जांचना है कि अब मुझे थोड़ा सा और, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मुझे थोड़ा सा और चॉकलेट जो है वो देना पड़ेगा। चॉकलेट सिरप जो है वो मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर देने की आवश्यकता है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चॉकलेट सिरप देती हूँ। ये इस तरह से लिया मैंने, इसको मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। और अब मैंने यहाँ पर इसको करना शुरू कर दिया है। मिक्स कर रही हूँ मैं इसको। अब वही सिमिलर आपने वही वाला प्रोसीजर यूज करना है। आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए अपने हाथों में, और अब इस पानी के साथ इसको मिक्स कीजिए। आपके हाथ थोड़े से खराब हो जा सकते हैं, थोड़े से गंदे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। ये हाथों, ये ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, ये अपने आप से ये हाथ आपके धुल जाएंगे। आपको किसी तरह से कोई मुश्किल नहीं आएगी इनको साफ करने में, सफाई करने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको, इसलिए इसकी चिंता किए बिना आप इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से इनको मिक्स कीजिए। अपने हाथों से इसको अच्छे से घुमाइए। ये तेल आपने थोड़ा सा अपने हाथों पे लगा लीजिए, और अब इनको आप अच्छी तरीके से इस तरह से आप इनको कीजिए। अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा आप इसमें
पाउडर बिस्किट का और यूज़ कर सकते हैं। पाउडर बिस्किट का अगर आप हाथ से यूज़ कर रहे हैं ना, इसका एक और फायदा ये भी हो जाता है कि अगर मिक्सी में करते हुए थोड़ा सा लंपी हो जाए, थोड़े से लम्प्स रह जाएं, तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। आसानी से बिस्किट के लम्प्स को आप तोड़ सकते हैं। ये जो है ये सबसे बड़ा फायदा है। अब इसको करने के लिए अब मैंने इसको हिस्से में बांट लिया है। अब मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। अब इन्हें भी आपने पूरी तरह से गोल आकार देना है। गोल आकार देना है आपने इनको पूरी तरह से। इनको आप गोल कर दीजिए, गोल आकार दे दीजिए इनको। ताकि प्रॉपरली जो है ये बिल्कुल लड्डू का रूप धारण कर सके। इसके बाद हमने देखना है कि किस तरह से हमने इसको डेकोरेट करना है। उससे पहले उसको डेकोरेट करने के लिए उससे पहले हमारे हाथों का साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हाथों को साफ करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। पानी से आप हमेशा लेकर बैठिए। ये टिप्स है आपके लिए। जब भी आप इसको बनाने बैठ रहे हैं, आप अपने साथ पानी लेकर बैठिए, ताकि आप अपने हाथों को उस समय पानी के अंदर डालकर साफ कर सकें। उसके बाद आप इसको स्प्रिंकलर्स का प्रयोग कर सकें। तो अब मुझे पानी मेरे पास मैं लेकर नहीं बैठी थी, इसलिए मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, किसी को आवाज़ देना पड़ेगा, मुझे पानी सप्लाई करके जाए, मुझे पानी देकर जाए। तो इसके लिए मैं हमारी जो आस्था स्टूडियो की जो आर्ट फैसिलिटेटर हैं मिस दमनजीत कौर, उनको मैं आवाज़ देती हूँ, उन्हें मैं बुलाती हूँ, उन्हें मैं कहती हूँ थोड़ा सा पानी लाकर देंगे मुझे, ताकि मैं हाथ धोकर फिर आपको मैं ये स्प्रिंकलर को बनाने किस तरह से हमने इसको डेकोरेट करनी है उसकी विधि मैं आपको बताती हूँ। दमनजीत मैम, पानी की व्यवस्था करेंगे वो मेरे लिए, एक बड़े कंटेनर में मेरे लिए पानी लेके आइए आप, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये पानी आप हमेशा अपने साथ लेकर बैठिएगा। हमेशा हर एक को आवाज़ देना जो है वो नहीं हो पाता है कई बार, ठीक है जी। तो इसलिए हमें पानी को साथ में लेकर बैठना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि अगर आप पानी से हाथ को नहीं साफ कर लेंगे, घर में तो आप जब बना रहे हैं आप तो कभी भी जाकर यू कैन गो टूवर्ड्स द टैप एंड अपने आप किचन में आप अपने हाथ को अच्छी तरह से धो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि आप जब यहाँ पर बैठकर कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसलिए तब उस समय आपका उठकर जाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे हालत में, ऐसे समय में, उस समय हमारे को पानी की जो है वो लेकर ही हमारे को अपने साथ बैठना ज़रूरी हो जाता है। सो आई विल जस्ट वॉश माई हैंड्स एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने उसको स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। आप यहीं बैठिए मैम। किस तरह से स्प्रिंकलर का इस्तेमाल हमने करना है। बस इस तरह से ये हाथ मैंने साफ कर लिए हैं अपने, ये हाथ मेरे साफ हो गए हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको इसको डेकोरेट करने का तरीका बताऊंगी, हाउ वी कैन डेकोरेट इट। अब मैंने इसको एक साइड में रख दिया है। मैं दोबारा से इसको यहाँ पर ला रही हूँ, और जो मैंने इसके पहले भी आपको ट्रिप्स बताए थे वही सेम ट्रिक्स मैं आपको इसके लिए भी बता रही हूँ। जो बेसिक्स है ये आपको मैं कुकिंग टिप्स में भी बता रही हूँ कि सबसे कभी भी आप वो करते हैं तो वो आप उसको बंद कर लीजिए, वो आपका मेसी नहीं होगा, फिर कोई भी जगह कुछ भी जो है वो मेसी नहीं होगा। ये है जी स्प्रिंकलर्स। ये स्प्रिंकलर्स जो है ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं। आप मार्केट में जाकर ये स्प्रिंकलर्स जो है खरीद कर ला सकते हैं, या आप ये स्प्रिंकलर्स घर पर भी बना सकते हैं।
अब आप घर पर ये स्प्रिंकलर्स कैसे बना सकते हैं? घर पर आप जो है शुगर ले लीजिए, ठीक है। शुगर के पीसेस अगर आपने ले लिए हैं, शुगर के पीसेस को आप फूड कलर से, अलग अलग फूड कलर्स आपने ले लिए, रेड ले लिया, येलो ले लिया, ग्रीन ले लिया या सम अदर कलर ले लिया, उनसे आप उसको क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से उनको फूड कलर्स के साथ मिक्स कर दीजिए। अब जब आप उनको फूड कलर्स के साथ मिक्स कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके इस टाइप के स्प्रिंकलर्स जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से कई बार खसखस किसी के घर में होता है अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल, कई घर में रखते हैं, तो आप उस खसखस को भी इसी प्रोसीजर से एज ए स्प्रिंकलर आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह सौंफ होती है घर में, मीठी वाली सौंफ, मीठी वाली सौंफ को भी आप फूड कलर्स के साथ डालकर उसे भी आप एज स्प्रिंकलर्स घर में यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ मार्केट से मैं स्प्रिंकलर्स लाई हूँ, तो मैंने मार्केट वाले स्प्रिंकलर्स यूज किए हैं। ये व्हाइट तिल है, व्हाइट तिल को भी हम एज स्प्रिंकलर जो है वो यूज किया जा सकता है। व्हाइट तिल को मैं ये वाले जो मैंने जो चॉकलेट लड्डू बनाए हैं उसके ऊपर जो है मैं ये व्हाइट तिल से इसको मैं डेकोरेट करूंगी। तो मैंने यहाँ पर स्पून के साथ व्हाइट तिल को निकाल लिया है। और अब मैं इन लड्डुओं को इसके ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस करूंगी। अच्छी तरह से मैं इन लड्डुओं को इसके ऊपर प्रेस कर दूंगी। ऐसे प्रेस करूंगी ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह ये चिपक जाए, गोले में ही रहें और ये चिपक जाए और ये देखने में सुंदर लगे। अगर आपको लगे कि चिपक नहीं रहे हैं तो आप अपने हाथों में ऑयल लगाकर इनको थोड़ा सा ऑयली बना सकते हैं। जब इसको अगर आप ऑयली बनाएंगे तो ये बहुत जल्द ही ऑयल के साथ जो है वो चिपक जाएंगे। ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसकी सहायता से आप इन लड्डुओं को इस तरह से लड्डू जो है आप घर पर बना सकते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से आप जो है कुकिंग कर सकते हैं। कोई भी अवेलेबिलिटी से आप उसको कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। घर में हमारे कई बार ड्राई फ्रूट्स हमारे घर में होते हैं, तो उन ड्राई फ्रूट्स की सहायता से भी आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं। सो एनी वे यू कैन डेकोरेट दीज। अगर आपको स्प्रिंकलर्स नहीं भी खरीदने या आपके पास टाइम नहीं है स्प्रिंकलर्स खरीदने का, तो आप घर में ही स्प्रिंकलर्स तैयार कीजिए और उन स्प्रिंकलर्स को आप इनके ऊपर डालिए। तो आप देखिए कितने अच्छे आपके बनते हैं ये लड्डू, कितने सुंदर और कितने डेकोरेटिव लगते हैं। ये बच्चे अपने आप से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे इनको खाने के लिए, ठीक है ना जी। ये तो हो गए हमारे चॉकलेट लड्डू जिनके ऊपर हमने व्हाइट तिल लगा दिया है। अब हमारे पास रह गए जो हमने मिल्क लड्डू बनाए थे। अब मिल्क लड्डू को हम इस तरह के स्प्रिंकलर के साथ इसे हम डेकोरेट करेंगे। हमने ये मिल्क लड्डू ले लिया है, इसको भी ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल का कोटिंग दे दिया है और अब इसे हम इसके ऊपर हम इन स्प्रिंकलर्स को यूज कर रहे हैं। इन स्प्रिंकलर्स को हम अब इन लड्डुओं के ऊपर लगा रहे हैं ताकि ये बड़े कलरफुल से सुंदर से दिखने में लगे। इसको हमने कलर वाले इसलिए स्प्रिंकलर यूज किए हैं क्योंकि ये मिल्क लड्डू हैं। मिल्क लड्डू का कलर ही थोड़ा सा क्रीमिश टाइप का है, तो इसके ऊपर अगर हम तिल डालते, तिल भी वाइट है, क्रीम है, और ये लड्डू भी वाइट है, क्रीम है, तो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो इतना अच्छा गेटअप उनका नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये करने से क्या होगा, इनका बहुत अच्छा जो है वो गेटअप आ गया है। इस पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हर एक को, जितने भी आपके लड्डू हैं, हर एक लड्डू के ऊपर आप स्प्रिंकलर से इसको स्प्रिंकल कर लीजिए और इनके ऊपर स्प्रिंकलर लगाते जाइए। बिलीव मी, आपके बच्चे बहुत खुश होकर इस लड्डुओं को खाएंगे। दे विल बी सो हैप्पी टू ईट दीज लड्डूज। और जो फ्रेंड्स भी आएंगे आपके घर में, देखना वो भी इन लड्डुओं के लिए ही आएंगे, बार बार इन लड्डुओं को खाना चाहेंगे। सिर्फ नॉट ओनली होली, सिर्फ होली में ही नहीं, आप किसी भी त्योहार में
इन लड्डुओं को, इस तरह से लड्डुओं को आप बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। वो कोई भी त्योहार आपका क्यों ना हो, आप इन लड्डुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। वैसे भी बच्चों को कई बार भूख लग जाती है, कुछ खाना है कहने लगते हैं, तो ये बहुत न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसमें सब कुछ ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। पार्ले जी बिस्किट शायद बच्चा ऐसे नहीं खाएगा, लेकिन आप अगर इसको इस फॉर्म में देंगे, इस तरह से आप अगर इसको लड्डू बनाकर ऐसे फॉर्म में देंगे तो बच्चा बड़ी जल्दी इसको खा लेगा। और इसके अंदर जो हमारे वो लगे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही डिलीशियस होते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं हमारे लिए। ये जो कंडेंस मिल्क है, दैट इज़ मोर डिलीशियस फॉर अस दैट दिस कंडेंस मिल्क। तो ये भी हमारा जो है बहुत अच्छा और न्यूट्रिशनल, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत न्यूट्रिशनल हो जाता है। अगर आप डाइटिशियंस को भी पूछेंगे तो दे विल ऑल्सो से दैट दीज लड्डूज आर वेरी गुड फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रेन, ग्रोइंग बच्चों के लिए, बिकॉज ग्लूकोज इज सच अ थिंग दैट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की ग्रोथ के लिए ग्लूकोज, एंड दिस पार्ले जी बिस्किट्स आर मोर अ ग्लूकोज बिस्किट। इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, एंड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड, ग्रोइंग बच्चे के लिए। तो इस वजह से, और ये भी जो कंडेंस मिल्क है, दिस इज नथिंग बट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क। आप घर में भी कंडेंस मिल्क तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से कंडेंस मिल्क खरीद कर नहीं लाना है तो यू कैन प्रिपेयर द कंडेंस मिल्क एट होम। आप दूध को लेकर उसको बॉईल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब वो बिल्कुल भी एक पैकेट दूध जब आधे से भी कम पैकेट रह जाता है, दैट बिकम्स योर कंडेंस मिल्क। उसके ऊपर जो है लेकिन एक मलाई की परत जम जाती है जो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो आप उस मलाई की परत को हटाने के लिए आप उसको स्ट्रेनर में अगर आप उसको छानेंगे और उसको घुमाते रहेंगे तो धीरे धीरे वो मलाई की लेयर जो है वो बिल्कुल वहाँ से खत्म हो जाएगी। तो ये तो हमारे लड्डू बनकर तैयार है। अब मार्केट में इस तरह के स्टिक्स अवेलेबल हैं, आप इस तरह के स्टिक्स के ऊपर इन लड्डुओं को आसानी से सजा सकते हैं। आसानी से आप इन लड्डुओं को इसके ऊपर आप रखिए और इसे आप किसी अच्छे से उस पर सजा दीजिए। सो योर चिल्ड्रन विल बी वेरी हैप्पी। Like this you can make the लड्डूज। ये दो ऐसे हो गए। एक मैं आपको चॉकलेट के साथ बताती हूँ, एक चॉकलेट के साथ बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें लड्डुओं को अच्छे से So this has become your होली स्पेशल मिठाई। आप बनाइए, अपना मुंह मीठा कीजिए, बच्चों का मुंह मीठा कराइए, अपने परिवार में आपके जो भी सदस्य हैं सभी का मुंह मीठा करवाइए विद दिस होली स्पेशल मिठाई। विद दिस होली स्पेशल मिठाई। अब ये है, इनको आप किसी भी उसके अंदर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ये थोड़े से भारी है, तो आप ये किसी बड़ी उसमें कंटेनर में आप इसको लगाइए। मैं आपको बताती हूँ ज़रा देखकर हाथों से। ये देखिए, ये आपकी होली की मिठाई जो है बनकर तैयार हो गई है। आप खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, और जो भी आपके घर में परिवार में आता है उन सबको खिलाइए। इट्स अ हेल्दी फूड। ये कोरोना काल में भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, और बिलीव मी,
बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे, बहुत पसंद करेंगे, बार बार आपके पास आएंगे. सो दिस इज अबाउट ऑल. ये आज हमने सीखा किस तरह से हम मिल्क लड्डू और चॉकलेट लड्डू जो है वो बना सकते हैं होली में. इसी तरह से आप और भी चीजें, और भी कई तरह की मिठाइयाँ जो है होली में बनाकर खिला सकते हैं, खा सकते हैं. तो आज इसके साथ ही हमारा जो है ये 3 दिन का ये एपिसोड जो है वो खत्म हो रहा है. अब हम तीसरे दिन में जो हमने ये 3 दिन के एपिसोड में हमने क्या क्या सीखा. हमने टाई एंड डाई का दुपट्टा सीखा, कैसे टाई एंड डाई करते हैं, हमने वो प्रोसीजर सीखा. उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से होली के रंग हम घर में ही अवेलेबल कलर्स, किस अवेलेबल चीज़ों के साथ उन रंगों को हम बना सकते हैं, ये हमने सीखा. और उसके बाद हमने सीखा, आज हमने सीखा किस तरह से हम होली की मिठाई बिना आग के बना सकते हैं. इवन आपका बच्चा तक इसको बना सकता है, इसको देख सकता है, इसको कर सकता है. सो टुडे it was the last day. I hope all of you have enjoyed the session. आप सबको ये अच्छा लगा. आप सबको बहुत बहुत बधाई हो होली की. Congratulations and good wishes for होली. होली मनाइए, ग्रीन होली मनाइए इस बार, इको फ्रेंडली होली मनाइए इस बार.